हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। आज हम और एक न्यू स्टोरी लेके आए हैं आपके लिए, जिसका नाम है, जो टाइटल आप देख रहे हैं, मनी वीएस फैमिली। मनी और फैमिली के दरमियान मतलब कैसा डिफरेंसेस है, कौन सी चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, वो हम देखेंगे स्टोरी पे। तो हम स्टोरीज़ के थ्रू जितना हो सके इंग्लिश पे चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं बहुत पहले से, फिर भी हम करेंगे, क्योंकि यही सीरीज़ है जो हमको मतलब ये लैंग्वेज सीखने में एक बड़ा रोल प्ले करता है। क्योंकि स्टोरीज़ के थ्रू जब हम एक स्टोरी देखते हैं तो क्या क्या देखते हैं उसमें, हम पहले उसको रीडिंग करते हैं, तो हमारा रीडिंग कैपेबिलिटी जो है वो बिल्डअप होता है। उसके बाद जब रीडिंग करते हैं तब हम समझने की कोशिश करते हैं एक स्टोरी पे, कैसा सेंटेंस का यूज़ हुआ है, स्ट्रक्चर कैसा है, ग्रामर कैसा फिट हुआ है, वो सब समझने की कोशिश करते हैं। तो उससे हमारा मतलब एक बड़ा बेनिफिट होता है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है एक लैंग्वेज को सीखने के लिए। तो नंबर 2 हो गया। नंबर 3 क्या है, जब हम एक स्टोरी को देखते हैं तो बहुत सारे वर्ड्स देखते हैं, वोकेबलरी को मतलब इतना इंक्रीज़ होता है हमारा वोकेबलरी कि हम सोच नहीं पाते कि कैसा ये सब इंक्रीज़ हो गया। अगर आप दूसरे वे से सिर्फ वोकेबलरी को सीखने की कोशिश करें, तब ये होता है कि हम सीख तो लेते हैं, हज़ार वोकेबलरी सीख लेते हैं, पर हम यूज़ नहीं करते, सो हम भूल जाते हैं। तो स्टडीज़ के थ्रू हम जब प्रैक्टिस करेंगे तो डायरेक्ट फिट हो जाएगा, तो इसलिए ये भी इंक्रीज़ होता है। एंड जो लिसनिंग है, वो तो आप जब स्टोरी सुनेंगे तो लिसनिंग भी हो जाएगा। मतलब एक लैंग्वेज सीखने के लिए जितने सारे चीज़ें इम्पोर्टेंट है, जिसके बिना आप एक लैंग्वेज नहीं सीख सकते, वह सब इंक्लूडेड है एक स्टोरी पे। इसीलिए हम स्टोरीज़ का सेशन जो है वो चला रहे हैं। वो सीरीज़ में हम मतलब जितना हो सके हम प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। तो चले बने रहिए, बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टोरी को पहले एक बार पढ़ लेते हैं, ताकि हमारा रीडिंग कैपेबिलिटी को बिल्डअप हो जाए, इंक्रीज़ हो। तो स्टोरी का नाम जो है, मनी वीएस फैमिली। तो चले पढ़ना स्टार्ट करें। Rama's family is very big. Rama is a hard worker and he is the sole breadwinner of the family. He has three kids, two sons and a daughter. He lives along with with father and mother. Rama used to work too hard to feed his family. He works for more than 16 hours a day. The kids cannot see him as he will leave home early in the morning before they wake up and reach home around midnight when kids would sleep every day. The entire family eagerly wait to spend quality time with him and the kids miss him so much. The children were too curious about Sundays as his father should spend the entire day with them. Unfortunately, to meet the increasing household expenses and educational expenses, Rama took a weekend job to work even on Sundays. The kids were very shattered, and even Rama's wife and parents too. The typical routine continued for several weeks, and years passed. All the hard work of Rama earned a lot of benefits, and he was offered promotion with attractive increment. The family moved to a new house, got better clothes, and ate healthy foods. However, as usual, Rama continues to earn more and more money. One day, his wife asked him, "Why are you running for money? We can be happy with what we have now." Rama replied, "I want to give the best available in the world to all of you and want you to stay happy always." 2 years passed, and Rama hardly spent time with his family. The children yearned to have their father at home. Meanwhile, the sincere efforts of Rama reaped him a fortune. He was offered partnership and share in profits. He continued to earn more and more wealth. Now, Rama's family is one of the richest families in the city. They have all the facilities and luxuries. Still, Rama's children strove to meet their father as he was hardly seen at home. His children turned teens and there are no more kids. Now Rama earned enough wealth to provide a luxurious life to his next 5 generations.
Rama's family went to their beach house to spend their vacation. His daughter asked, "Dad, will you please spend one day at home and stay with us here?" Rama replied, "Yes, darling, tomorrow for sure. I will join you for the lunch and be with you all for next few days. I am tired of work and need refreshment." The entire family became very happy. Unfortunately, the next day, none in Rama's family were alive, as they were washed out in tsunami. Rama was too busy even to hear the news about tsunami. When he tried to reach his beach house, he saw sea and water everywhere and screamed for his family. He could not even find the dead bodies of his family. He can never have them again, cannot even see them, and even by paying millions, he cannot get them back to life. He remembered his wife's words. Why are you running for money? Why we can be happy with what we have now. Money can't buy everything. सो ये था हमारा मतलब रीडिंग जो है। ऐसे अगर हम रीडिंग करेंगे तो ज़रूर हमको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। फिर हम चले लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। ये बहुत इजी स्टोरीज़ है। ऐसे स्टोरीज़ के थ्रू अगर हम प्रैक्टिस करें इंग्लिश सीखने की तो मतलब इतना ज़्यादा फ़ायदा होगा, बेनिफिट होगा हमको। सो आप ट्राई करें, जहाँ भी आपको स्टोरी मिले, शॉर्ट स्टोरीज़ मिले, उसको पढ़ने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें एंड सेंटेंस को देखने की भी कोशिश करें एंड आप उस जैसे सेंटेंस और भी बनाने की कोशिश करें। द फर्स्ट लाइन इज़ रमाज फैमिली इज़ वेरी बिग। रमा का फैमिली जो है बहुत बड़ा फैमिली है। रमा इज़ ए हार्ड वर्कर। रमा इज़ ए हार्ड वर्कर एंड ही इज़ द सोल ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली। रमा क्या करता है? वह बहुत हार्ड वर्कर है, हार्ड वर्क करता है। ही इज़ द सोल ब्रेड विनर। ही इज़ द सोल ब्रेड विनर मतलब वो एक ही बंदा है जो फैमिली के लिए जितना सारा खर्चा उठाना था वह सब वही उठाता है। सोल ब्रेड विनर, सोल मतलब वह एक ही है, जो ब्रेड विनर मतलब जो अपने फैमिली के लिए खाना मतलब जो जुगाड़ करता है। ही हैज़ 3 किड्स। कितने बच्चे थे? 3 किड्स, 2 सन्स एंड ए डॉटर। 2 सन्स था, एक डॉटर था। ही लिव्स अलॉन्ग विद फादर एंड मदर। उसके माँ बाप के साथ वो रहता था। रमा यूज्ड टू वर्क टू हार्ड टू फीड हिज फैमिली। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता था टू फीड हिज फैमिली, उसको उसकी फैमिली को खिलाने के लिए। सेकेंड पैराग्राफ में ही वर्क्स फॉर मोर देन 16 आवर्स ए डे। मोर देन कितने आवर्स? 16 आवर्स ए डे। मोर देन 16 आवर्स से भी ज़्यादा वो काम करता था। ही वर्क्स फॉर मोर देन 16 आवर्स ए डे। एक दिन में 16 आवर्स से ज़्यादा वो काम करता था। द किड्स कैन नॉट सी हिम एज ही विल लीव home early in the morning before they wake up and reach home around midnight when kids would sleep every day. The kids cannot see him. उसके बच्चे उसको देख नहीं पाते। The kids cannot see him मतलब बच्चे उसको देख नहीं पाते। क्यों? As he will leave home early, वो मतलब अपने घर को अर्ली छोड़ देता है, सुबह सुबह निकल जाता है घर से। अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह निकल जाता है। कब? बिफोर दे वेक अप मतलब उसके बच्चे नींद से जागने से पहले ही वो निकल जाता है घर से। एंड रीच होम, एंड घर कब आता है? रीच होम घर आता है अराउंड मिडनाइट, नाइट पे मतलब आधी रात पे घर आता है। व्हेन किड्स वुड स्लीप एवरी डे, जब किड्स मतलब पूरे सो जाते थे तब आता है, इसलिए किड्स उसको देख नहीं पाते। द एंटायर फैमिली मतलब पूरे फैमिली ईगरली वेट टू स्पेंड क्वालिटी टाइम, उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए ईगरली बहुत विश कर रहे हैं टाइम स्पेंड करने के लिए विद हिम। एंड द किड्स मिस हिम सो मच, एंड किड्स उसको बहुत मिस करते हैं। आफ्टर ऑल ही इज़ द फादर। सो जब वो लोग उसको देख नहीं पाते, उनके जागने से पहले वो घर से निकल जाता है, फिर उनके सोने के बाद घर आता है तो किड्स देख नहीं पाते, सो बहुत मिस करते थे। द चिल्ड्रन वेयर टू क्यूरियस अबाउट संडे। तो चिल्ड्रन क्या थे? बहुत क्यूरियस थे, बहुत मतलब एक्साइटेड थे। संडे की वेट कर रहे थे। एज हिज फादर वुड स्पेंड द एंटायर डे विद देम, कि वो सोच रहे थे कि संडे तो काम नहीं होगा तो हमारा क्या है, बाप पूरा दिन हमारे साथ रहेंगे। अनफॉर्चुनेटली
अनफॉर्चुनेटली क्या हो जाता है, टू मीट द इंक्रीजिंग हाउस होल्ड एक्सपेंसेस एंड एजुकेशनल एक्सपेंसेस। इंक्रीजिंग हाउस होल्ड के घर के जो एक्स्ट्रा खर्चा है उसको उठाने के लिए एंड एजुकेशनल जो पढ़ाई के खर्चा उठाने के लिए वो क्या करता है, रामा टुक ए वीकेंड जॉब टू वर्क इवन ऑन संडे। संडे के लिए भी और एक जॉब मतलब वो चूज़ कर लेता है। किस लिए, टू मीट द इंक्रीजिंग मतलब जो ज़्यादा ज़्यादा हाउस होल्ड का जो एक्सपेंसेस है, जो खर्चा है, एंड एजुकेशनल एक्सपेंसेस है, जो पढ़ाई का खर्चा है, उसको उठाने के लिए वीकेंड पे भी वो जॉब पे लग जाता है। द किड्स वेर वेरी शटर्ड इवन रमाज वाइफ एंड पेरेंट्स टू। किड्स भी शटर्ड थे, रमाज वाइफ भी शटर्ड थी एंड पेरेंट्स भी। शटर्ड मतलब है मतलब दुख से भरा हुआ, मतलब शटर्ड हो जाना, मतलब उनके अंदर ऐसा दुख है कि वो टुकड़ा टुकड़ा हो जाना, चूरमार हो जाना, ऐसे दुख थे तो शटर्ड थे। सो द टिपिकल रूटीन कंटिन्यूड सेवरल फॉर सेवरल वीक्स एंड ईयर पास। तो ऐसा जो रूटीन चलता था रमा का, सा मतलब बहुत वीक्स, हफ्ता निकल गया एंड इवन ईयर भी पास्ट हो गया, साल भी निकल गया, गुजर गया। ऑल द हार्ड वर्क ऑफ रमा अर्नड अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स एंड ही वाज ऑफर्ड प्रमोशन विद अट्रैक्टिव इंक्रीमेंट। तो उसके हार्ड वर्क की वजह से क्या हो गया, उसने अर्न कर लिया, मतलब बहुत सारा बेनिफिट्स जो है उसके हार्ड वर्क की वजह से उसके अर्न कर लिया। एंड ही वाज ऑफर्ड, उसको ऑफर्ड किया गया, प्रमोशन किया गया विद अट्रैक्टिव इंक्रीमेंट, एक अच्छे मतलब सैलरी, मतलब ज़्यादा सैलरी में प्रमोशन दिया गया उसको। उसके बाद पैराग्राफ जो है, द फैमिली मूव टू ए न्यू हाउस। फैमिली आप कहाँ मूव कर गए, एक नए घर पे मूव कर गए। गॉट बेटर क्लॉथ्स एंड एट हेल्दी फूड्स। अच्छे क्लॉथ्स भी है एंड खाते क्या थे, हेल्दी फूड्स खाते थे। हाउएवर एज यूजुअल, हर रोज के जैसा रमा कंटिन्यूज टू अर्न मोर एंड मोर मनी। रमा क्या कर रहा है, कंटिन्यूज टू अर्न मोर एंड मोर मनी। वो मोर एंड मोर, ज़्यादा से ज़्यादा मनी को मतलब जमा करने की कोशिश कर रहा है, उसका रूटीन चल रहा है ऐसा। वन डे हिज वाइफ आस्क्ड हिम व्हाई आर यू रनिंग फॉर मनी। उसकी बीवी ने उसको पूछा कि व्हाई आर यू रनिंग फॉर मनी, क्यों तुम पैसे के पीछे भाग रहे हो। वी कैन बी हैप्पी विद व्हाट वी हैव नाउ। हम जितने सारे हमारे पास है, व्हाट वी हैव नाउ मीन्स जितने सारे हमारे पास है, वी कैन बी हैप्पी विद, हम उसी से खुश रह सकते हैं। रमा रिप्लाइड, अब रमा ने रिप्लाई किया, आई वॉन्ट टू गिव द बेस्ट अवेलेबल इन द वर्ल्ड टू ऑल ऑफ यू एंड वॉन्ट यू टू स्टे हैप्पी ऑलवेज। रमा ने रिप्लाई किया, आई वॉन्ट टू गिव, मैं देना चाहता हूँ, द बेस्ट अवेलेबल इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में, विश्व में जितना सारा बेस्ट है अवेलेबल, वो सब टू ऑल ऑफ यू, आप तुम सबको मैं देना चाहता हूँ। एंड वांट यू टू स्टे हैप्पी ऑलवेज, एंड मैं चाहता हूँ कि तुम सब हैप्पी रहो, खुश रहो। ऐसा रमा का रिप्लाई है। उसका भी थिंकिंग तो अच्छा था, लेकिन उसका निगेटिव साइड, बहुत नेगेटिव साइड जो हम अगर स्टोरी को पूरा देख ले तो देख पाएंगे क्या है उसका इफेक्ट। 2 years passed and रमा हार्डली स्पेंड टाइम विद हिज फैमिली। 2 साल गुजर गया। 2 years पास, 2 साल गुजर गया। रमा हार्डली स्पेंड, हार्डली मीन्स कभी कभी, कभी कभी मतलब बहुत, क्या होता है, कभी कभी मिलता है, स्पेंड करता है टाइम विद हिज फैमिली, फैमिली के साथ। द चिल्ड्रन, बहुत मुश्किल से, हाँ हार्डली का मीन्स बहुत मुश्किल से टाइम स्पेंड करता है फैमिली के साथ, मतलब टाइम नहीं है उसके पास, काम में चला जाता है। द चिल्ड्रन यार्नड टू हैव देयर फादर एट होम, हैव देयर फादर एट होम। तो चिल्ड्रन का चाहत किया था कि उनके फादर घर पे रहे। meanwhile द सिंसियर एफर्ट्स ऑफ रमा रिप्ड हिम ए फॉर्चून। पर क्या हुआ, रमा का जो सिंसियर एफर्ट्स है, वो जो हार्ड वर्किंग करता था, उसने उसका फॉर्चून मतलब खोल दिया। क्या हो गया, ही वॉज ऑफर्ड, उसका ऑफर किया गया है पार्टनरशिप एंड शेयर इन प्रॉफिट्स। एक बड़ा बिजनेस में पार्टनरशिप दिया गया एंड प्रॉफिट का शेयर भी दिया गया। ही कंटिन्यू टू अर्न मोर एंड मोर वेल्थ। अब क्या कर रहा है, अब मोर एंड मोर वेल्थ, जितना सारा ज़्यादा से ज़्यादा संपद अब वो अर्न करने लगा है। नाउ रमाज फैमिली इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट फैमिलीज इन द सिटी। अब क्या हो गया, रमाज फैमिली वन ऑफ द रिचेस्ट फैमिलीज इन द सिटी। सिटी के जितने सारे रिच फैमिली है, अमीर फैमिली है, उनके बीच एक रमा का फैमिली भी एक हो गया। दे हैव ऑल द फैसिलिटीज़ एंड लग्जरीज। जितने सारे फैसिलिटीज़ है अवेलेबल, जितने सारे लग्जरीज है, कॉस्टली, मतलब एक लाइफ जीने के लिए मतलब जितना सारा अच्छी चीज़ें होना चाहिए वो सब अवेलेबल है अब राना के फैमिली में। स्टिल रमाज
चिल्ड्रन स्ट्रोव टू मीट देयर फादर एज ही वॉज हार्डली सीन एट होम। बट उसके बावजूद भी क्या है, रमा के जो चिल्ड्रन है, जो किड्स है, वो मतलब ट्राई करते हैं वो कि रमा से मीट करने के लिए, एज ही वॉज हार्डली सीन एट होम, बिकॉज रमा को घर में देखा ही नहीं जाता, वो हमेशा काम पे ही चले जाते थे। तो उसके जो चिल्ड्रन थे, चिल्ड्रन का एक डिज़ायर था, विश था कि उनके फादर घर पे रहे एंड वो उनके साथ टाइम स्पेंड करें। उसके बाद क्या हुआ, हिज चिल्ड्रन टर्न्ड टीन्स एंड देयर नो मोर किड्स। अब उसके चिल्ड्रन क्या हो गए, अब वो बच्चे नहीं रहे, टीन्स पे टर्न्ड हो गए। चिल्ड्रन टर्न्ड टीन्स मतलब टीन्स होता है 13 से 19 साल तक जो एज है, एज ग्रुप है, उसको टीन्स कहा जाता है, उसमें तब्दील हो गए। तो अब ग्रोन अप्स देयर नॉट नो मोर किड्स। रमा अर्नड इनफ वेल टू प्रोवाइड लग्जरियस लाइफ टू हिज नेक्स्ट 5 जनरेशन। अब रमा क्या कर रहा है, रमा फिर अर्निंग करने की कोशिश कर रहा है उसके नेक्स्ट 5 जनरेशंस के लिए, लग्जरियस लाइफ के लिए। रमाज फैमिली वेंट टू देयर बीच हाउस टू स्पेंड देयर वेकेशन। तो रमा की फैमिली कहाँ गए, एक बीच पे गए, बीच पे गए, बीच हाउस पे गए, स्पेंड देयर वेकेशन, वेकेशन को कटाने के लिए, टाइम स्पेंड करने के लिए। हिज डॉटर आस्क्ड, उसकी बेटी ने पूछा, डैड विल यू प्लीज स्पेंड वन डे एट होम एंड स्टे विद अस हियर। क्या आप हमारे साथ एक दिन रह सकते हैं हमारे साथ, कि हम एक साथ टाइम स्पेंड करेंगे। रमा ने रिप्लाई किया, यस डार्लिंग, हाँ डार्लिंग, टुमारो फॉर श्योर, हाँ कल मैं रहूँगा। आई विल जॉइन यू फॉर द लंच, हम लंच पे ज्वाइन करेंगे। एंड बी विद यू ऑल फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज, इन उसके बाद के कुछ दिन हम मतलब तुम्हारे साथ फैमिली के साथ रहेंगे। आई एम टायर्ड ऑफ वर्क एंड नीड रिफ्रेशमेंट, कि मैं वर्क से बहुत टायर्ड हो गया एंड मुझे भी थोड़ा रिफ्रेशमेंट चाहिए, थोड़ा कुछ चाहिए, तो हम स्पेंड करेंगे एक साथ। द एंटायर फैमिली बिकेम वेरी हैप्पी। अब एंटर फैमिली क्या हो गए, पूरा हैप्पी हो गए। अनफॉर्चुनेटली द नेक्स्ट डे, तो क्या हो गया, अनफॉर्चुनेटली उसके दूसरे दिन क्या हो गया, नन नन इन रनाज फैमिली, नन मतलब नो वन इन रनाज फैमिली वेयर अलाइव। रना की फैमिली में एक भी बंदा बचा नहीं रहा। कहाँ गए सब, एज दे वेयर वश्ड आउट इन सुनामी, एक सुनामी आया उनको बहा के ले चले गए, पूरे फैमिली मतलब खत्म हो गया। रमा वॉज टू बिजी इवन टू हियर द न्यूज अबाउट सुनामी। रमा इतना बिजी था कि उस सुनामी का जो न्यूज़ चल रहा था उसको भी सुनने का टाइम नहीं है उसमें। When he tried to reach his beach house, अब जब उसके प्लान के मुताबिक वो बीच हाउस में जाने के लिए ट्राई किया, तो he saw sea and water everywhere and screamed for his family। आप देखा पूरा सी जो है वाटर से भरा हुआ है पूरा, जिधर भी वो देख रहा है सब तरफ क्या है, वाटर ही वाटर है। एंड स्क्रीम्ड फॉर हिज फैमिली, अब उसको समझ में आ गया, स्क्रीम चिल्लाता रहा हिज फैमिली, फैमिली के लिए। ही कुड नॉट इवन फाइंड द डेड बॉडीज ऑफ हिज फैमिली। आप क्या, वो मतलब डेड बॉडी भी उसको नहीं मिला, उसके फैमिली के एक भी बंदा का डेड बॉडी भी नहीं मिला उसको। तो ही कैन नेवर हैव देम अगेन। अब क्या करेगा, ही कैन नेवर हैव देम अगेन, उनको अब वो कभी नहीं पा सकता, वो तो चले गए। कैन नॉट इवन सी देम, एंड देख भी नहीं सकता। एंड इवन बाई पेइंग मिलियंस ही कैन नॉट गेट देम बैक टू लाइफ। अगर वो मिलियन भी पे करे, मिलियन भी जितना सारा उसने कमाई की है उस सारे के सारे अगर दे रहे, तब भी फैमिली के लोगों को उसके लाइफ में नहीं मिल सकता, लाइफ में मतलब पा नहीं सकता। तो ही रिमेम्बर्ड हिज वाइफ वर्ड्स। तो अब वो अपने वाइफ के एक वर्ड्स को वो रिमेम्बर कर रहा है। वाइफ कह रही थी कि वाई आर यू रनिंग फॉर मनी, क्यों तुम पैसे के पीछे भाग रहे हो। वी कैन बी हैप्पी विद वॉट वी हैव नाउ, हमारे पास जितना भी है उससे हम हैप्पी रह सकते हैं। मनी कैंट बाई एवरीथिंग, तो मॉडल है मनी कैंट बाई एवरीथिंग, सिर्फ मनी मतलब पैसा सब कुछ खरीद नहीं सकता। तो ये हमारा एक मॉरल स्टोरी भी है कि पैसा कमाने के साथ साथ हमको फैमिली में टाइम स्पेंड करना चाहिए, अदरवाइज़ ये फैमिली एक दिन डिस्ट्रॉय हो जाएगा एंड हमारा पैसा कुछ नहीं कर पाएगा। सो फैमिली बहुत इम्पोर्टेंट है, पैसा भी इम्पोर्टेंट है पर कुछ हद तक इम्पोर्टेंट है, जितना मतलब ज़रूरत के, जितना जितने से हमारा ज़रूरत हो जाता है, ज़रूरत मीट हो जाता है, उससे ज़्यादा हमको इम्पोर्टेंट नहीं। तो ये मॉरल वैल्यूज़ दिया गया था, मॉरल लेसन भी दिया गया, तो हमका मतलब फोकस उसी पे करना है कि स्टोरी को कैसे समझे, स्टोरी को कैसे पढ़े। तो जितना हो सका, वीडियो बहुत लंबा हो गया तो हम यहाँ एंड करते हैं। तो चले
नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। थैंक यू।